Friends, before we begin with the activities, let me help you understand which applications or apparatus I am using in order to conduct these activities. For the present, what you are watching on the screen is a patch of a software called Wave Generator, which I had downloaded more than a decade earlier, and it allows me to produce frequencies of my choice over a wide span. Not only the frequencies are changeable, but even the waveforms are changeable. For example, as you can very clearly see on the screen, the frequency by default is chosen to be 500 Hz, that is 500 cycles per second. And how does the sinusoidal wave sound like? That you can hear through these two speakers, Philips speakers, 5-watt speakers, directly driven by my desktop. So listen to the sound. If I change the waveform, then you can also clearly know what is the difference in the quality of the sound produced. From sinusoidal I go over to triangular, it sounds like this. If I switch over to square, it sounds like this. What you can notice is that the element of shrillness is growing. And this way you can also change the frequencies and study various types of sounds. The sound can be low in frequency, something like 100 Hz. See how does it appear to your ears. If I go on increasing the volume setting here, then beyond a particular stage you will find that the sound quality is getting affected, which is indicative of distortion in the sinusoidal wave. So I don't do that. I keep the setting optimum so that I am sure of the quality of the sound being sinusoidal. This is a very helpful kind of software, because in the activity I will show you how we can make use of this for tuning of musical instruments. Perhaps it will be very fascinating for your students. You are all teachers, and perhaps it will be very fascinating for your students to see what is the range of activities what this small patch of software can produce. For example, there is a sweeping sinusoidal wave that this patch of software can produce. And how does it sound like? It will remind you of a motorcycle, perhaps, for which it's a kind of racer bike you can imagine, which is passing by you, approaching you and then passing by you. See. So the bike is speeding. And then of course this repeats itself after a couple of seconds, usually 5 to 7 seconds of duration it will allow you, and you can have full control over the frequencies. If you like, you can bring it down to something like 31. Anything more than 30 is allowed by the software. Look at this, the quality will change. You can also allow the students to know what is meant by noise, the undesired electrical signals, which are always present even when you listen to radio programs. And when the radio program transmission goes off, that time you are able to very clearly hear the noise what otherwise we ignore. For example, see this. This is the typical sound that you hear when a radio station goes off. For example, Vivid Bharati, when it closes down at about 11:30 night, thereafter you clearly listen to this kind of sound. ये जो आवाज आपको सुनने को मिलती है, ये नॉइज है, नॉइज अनडिजायर्ड, अवांछित.
जिसको कहेंगे हिंदी में। जहां तक हो सके इसको दबाने की हर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कोशिश करता है, कभी सफल हो पाता है, कभी सफल नहीं हो पाता है, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा पड़ती है कि सिग्नल आपका इतना बुलंद हो कि नॉइज उसे कोई तकलीफ ना दे सके। तो ये हुआ सॉफ्टवेयर का एक पैच, जैसे कि मैंने कहा इसका नाम है वेव जनरेटर। अगर आप किसी नियमित प्रयोगशाला में जाए फिजिक्स की, भौतिकी की, तो वहां इसे लोग फंक्शन जनरेटर के नाम से बुलाते हैं। अभी मैं आपको दूसरी कुछ आवाजें सुनाऊंगा जिससे आपको पता चले कि दो आवाजें अगर एक साथ अपने कानों पर पड़ती है तो उनमें अगर कुछ फर्क है फ्रीक्वेंसीज का, तो क्या हमारे कान उस फर्क को महसूस कर पाते हैं? Are our ears sensitive enough to know if there is a small but significant frequency difference in between two sounds produced by two different sources? तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, दो स्पीकर्स है, उसके लेफ्ट स्पीकर की फ्रीक्वेंसी 300 और राइट फ्रीक्वेंसी 303 को सेटिंग रखते हुए मैं आपको सुनाता हूं कि आवाजें कैसे आपको सुनने में मिलती है। देखिए, जैसा कि आपने महसूस किया होगा, as you might have noticed, there is a small difference in the frequency of the two sources of sound, and that is leading to fluctuations in the intensity or the volume of the sound at one point where I am sitting. Now this of course can be more perceptive with other frequencies. If you like, you can also have it at 500 or maybe lower side 200. That is a matter of choice for you. 500, 501. A very small difference I am making, and see if you are able to sense the difference in the frequency, that is the beat of 1 hertz. If I change the frequency and make the difference 2 or 3 or 4 or 10, then you will very clearly understand that the fluctuations, they become more rapid. For example, now the left speaker is producing 500 hertz and the right speaker is producing 510. Now this combination may not be a pleasant one, but my friends, please remember that there are certain frequencies, or rather I should say certain ratios, in which if the two sources, they are sounded together, then the combination sounds pretty good. And in music, people often make use of that. For example, left speaker is now made to produce 300 hertz, the right is made to produce 200 hertz, and how do you perceive this combination of sounds? You have to decide. This combination of sounds must have definitely reminded those people who have some exposure to classical music, और जिसे हम लोग महाराष्ट्र में सुरपेटी बोलते हैं, कि जो शहनाई या उस क्लास के साजों को साथ देने में काम आती है, उनका मुझे ये अनुभव मिल जाता है। ये जरूरी नहीं, अभी जो मैंने दो साउंड लगाए थे वो आप देखिएगा, एक फ्रीक्वेंसी 200 है, दूसरी 300 है, मतलब 1.5 का रेशो रखा हुआ है। यह टिपिकल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में षड्ज पंचम सा रे ग म प का कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहे तो षड्ज मध्यम का भी कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, या षड्ज और किसी सुर का रागों के अनुसार वो भी किया जा सकता है। आप देखिएगा कौन से कॉम्बिनेशंस आपको अच्छे लगते हैं, कौन से अच्छे नहीं लगते, और बाद में मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा जिसके जरिए आपको पता चल जाए
कि कौन से कॉम्बिनेशन आपको प्लेजेंट होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। ये देखिएगा, एक का फ्रीक्वेंसी अभी हो गया 240, दूसरे का हो गया 300। अभी 300 के बदले में इसको 320 करता हूं तो रेशो बन जाता है 4:3। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मैंने 240 को अगर मैं षड्ज पकड़ता हूं, सा पकड़ता हूं, तो ये षड्ज मध्यम कॉम्बिनेशन बन गया। 240 320, रेशियो इज 4:3। तो इस प्रकार से ये जो छोटे से पैचेस है सॉफ्टवेयर के, उनका मैं प्रयोग कर सकता हूं और विविध दिशा में इनका प्रयोग मैं कर सकता हूं। उसकी उपयोगिता जो है उसको मैं कैसे प्रयोग में लाऊंगा। तो आप जरा देखिएगा कि ये फंक्शन जनरेटर जो है ये मैं रेफरेंस बना सकता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था, what I have chosen is a very inexpensive musical instrument. ये बांसुरी है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसी बांसुरी अपने देश के हर किसी शहर में, गांव में आसानी से मिल जाती है। पब्लिक प्लेस हो, गार्डन हो, वहाँ बाहर जो बलून बेचने वाले होते हैं उनके पास ऐसी बांसुरी आपको इनएक्सपेंसिव, सस्ते में मिल जाएगी। मेरा अनुमान है आज की तारीख में कुछ 50-60 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना पड़े। और ये आप कह नहीं सकते कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको किसी माने में कम आनंद देगा। It can produce very good music. A lot depend on the artist who performs. But nonetheless, it is equally important that the frequencies that the instrument produces, the basic frequencies, basic tones, they are correct. तो इसमें जैसा कि आप देख रही हैं, 6 छेद नजर आ रहे होंगे आपको। This is an open pipe, open at both the ends, दोनों ends को ओपन है। So obviously, when we are exciting this air column, waves are set up in this air column, and the standing wave pattern, what results, it depends upon the frequency and the length. There is a correlation. For example, this you can see, they have written a C out here. C in the middle octave is usually 512. Perhaps later on we will see whether it is exactly 512 or not, or somewhere around. लेकिन for the time being, let me tell you कि it appears to be 512 because the length of this instrument, ये बांसुरी जो है, इसकी लेंथ के अनुसार अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू बी अराउंड 512. हाउ डू वी प्रोड्यूस द डिजायर्ड नोट्स? देखिए, सबके सब छेद जब मैं बंद करता हूँ, सब की सब उंगलियां रखता हूँ और इसमें एयर ब्लो करता हूँ, तो देखिए कैसे आ जाते हैं सुर एक एक।
सब उंगलियां बंद रखने से जैसे मुझे पहला षड्ज मिल रहा था नीचे वाला, ये 512 के आसपास जैसे कि मैंने कहा, लेकिन इसको जगह अगर मैं ज़्यादा प्रेशर से एयर ब्लो करूं, हुक बढ़ाऊं, तो इसी स्थिति में मुझे ऊपर वाला अपर ऑक्टेव का सा मिल जाता है, षड्ज मिल जाता है। Let's check using this function generator how far it is close to 512. Look at this. So remarkable. I am happy that my flute is really producing 512 as expected. अभी देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट आर वी डूइंग। जब बाकी के षड्ज के बाद ऋषभ, उसके बाद गंधार, उसके बाद मध्यम, फिर पंचम, धैवत, निषाद, ये सब आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, व्हाट आर वी डूइंग, हाउ आर वी प्रोड्यूसिंग दिस। तो देखिए, व्हेन आई एम क्लोजिंग ऑल दीज 6 होल्स, ये पूरा का पूरा जो कॉलम है ये उसमें एक्साइट होने जा रहा है। स्टैंडिंग वेव इसके ऊपर बनेगा। तो उसका जो सबसे बुनियादी पैटर्न है उसका लेंथ होता है λ/2। साउंड का स्पीड अराउंड 340 to 45 के बीच में अगर पकड़े, 340 अगर आप पकड़ते हो, 340 मीटर्स पर सेकंड एट अराउंड रूम टेम्परेचर इन इंडिया, तो मतलब 34,000 सेंटीमीटर्स बन जाता है वो। और उसको अगर आप फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें तो 500 भी अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 34,000 डिवाइडेड बाय 500, 2 जीरोस गए, सो कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी कमिंग अराउंड 340 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी 68 सेंटीमीटर्स। 68 सेंटीमीटर्स मतलब ये हो गया लैम्बडा, और λ/2 बन जाएगा अराउंड 34 सेंटीमीटर्स। तो when all the holes are closed, when I am exciting this hole of this pipe, hole of this flute, तो देखते हैं what is the length like। तो मेरे पास टेप है, तो let us check end to end इसका लंबाई है कितनी इसकी, यहाँ से लेके see this, can you see, I hope you can। एंड टू एंड पकड़ता हूँ and see how much is this. So you indeed get the length which is somewhere around 33-34 centimeters, which is indicative of the fact that our calculation or anticipation of the fundamental was correct. It should be around 500-512. When we want to produce the next tone, next note rather I should say, then I lift one of the fingers, एक उंगली उठाऊंगा, तो अब क्या हो रहा है, अब ओनली दिस सेक्शन इज कमिंग इनटू प्ले, यहां से यहां तक ही आएगा काम में। तो दैट इज व्हाई वी आर रिड्यूसिंग द लेंथ। वी आर रिड्यूसिंग द लेंथ मतलब अपना लैम्बडा घटता जा रहा है, क्योंकि λ/2 इतना बनने वाला है फंडामेंटल में, तो इसलिए अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। सो एज वी गो ऑन, जैसे जैसे एक एक उंगली उठाएंगे या और घट गया तो फ्रीक्वेंसी और ऊपर गया, गंधार में गया। नाउ ओनली दिस मच ऑफ एयर कॉलम इज बीइंग एक्साइटेड। तो मज़ेदार बात यह है कि यू शुड ऑलवेज कन्वे दिस टू योर स्टूडेंट कि अगर ऐसा मैंने किया
पंचम तक आ गया। अगर यहाँ अगर मैं एक होल बंद करूं या खुला करूं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज द इफेक्टिव एयर कॉलम यहाँ से यहाँ तक ही है। सो इट मेक्स नो डिफरेंस व्हेन एनी ऑफ दीज इंटरमीडिएट होल्स आर ओपन, वेदर यू क्लोज दिस होल और ओपन इट मेक्स नो डिफरेंस, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस यू शुड कन्वे टू योर स्टूडेंट्स। तो यूं आपको सबके सब सुर मिल जाते हैं। एंड इफ यू वांट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज, ऑफ कोर्स यू कैन थिंक ऑफ यूजिंग दैट। उंगली को मैं अगर हल्का सा उठाऊं और बंद करूं तो इन दैट केस ये जो सेमीटोन्स कहें, इनको दो जो सुर है सा और रे, उनके बीच में, तो ऑल दोज फ्रीक्वेंसीज आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस। उनका जो निर्माण है वो मेरा स्किल होगा। आई एम नॉट अ फ्लूट प्लेयर एज आई मेंशन्ड इन परहैप्स द फर्स्ट वीडियो, बट what I feel is the basic physics of the flute. If the students can be motivated to know about that, तो उससे उनकी रुचि में काफ़ी सुधार होगा और perhaps they will be able to come out with some innovation. इसमें शायद कुछ मॉडिफिकेशन भी कर पाएंगे। तो ये मेरी उम्मीद है कि when we are thinking of motivating the students from the point of view of understanding sciences in general better, तो उसमें ऐसी छोटी एक्टिविटी जो है वो हम लोग उनको ज़रूर शेयर करें उनके साथ। So that is why, although this is in cyclic order, I start with experience and nature also starts with experience. बच्चा जब गिरता है तभी संभल कर उठता है और फिर से खड़ा हो जाता है और चलने को सीखता है, तो उसमें रिफ्लेक्शन है, सोच है। उसके बाद में कंसेप्चुअलाइजेशन हो जाता है उसका धीमे धीमे कि कौन सा पाँव आगे रखना है, दोनों पाँव एक ही साथ आगे नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा फिर से। ये सब कंसेप्चुअलाइजेशन में आ जाता है। बाद में फिर से वो धीमे से दाया पाँव हो या बाया पाँव हो आगे रख के वो एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है और फिर चलना सीख जाता है। सिमिलरली विथ अदर लर्निंग एज वेल एट द हायर लेवल, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो, आप अनुभव करेंगे कि वो इसी साइकिल से गुजरता है। जो मैंने आपको एक्टिविटीज अभी बताई, वो एक्टिविटीज भी अगर आप इस पार्श्वभूमि पर सोचते हैं तो देखिएगा कि बीट्स वाला जो सबसे पहले मैंने आपको दिया था अनुभव, कि इसमें एक्सपीरियंस का हिस्सा कौन सा है, the tones produced by the right and left speakers, they give you the experience. उसके बाद आपने सोचने के बारे में अगर आप गौर करें तो क्या मिला आपको, तो आपका मन जो है वो सोचने लगा कि ये जो दो आवाजें थी वो इक्वल थी या एक लोअर था दूसरा हायर था, whether one of the frequencies was lower than the other or higher than the other, whether it was the right speaker or the left speaker and so on. देन कंसेप्चुअलाइजेशन की स्टेज में अगर आप जाके सुने तो आपको पता चल जाता है कि बीट्स आर हर्ड व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर क्लोज टू ईच अदर बट नॉट मैचिंग एग्जैक्टली। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपका जो कान है वो जब आप पूरा ध्यान दे के वो दोनों आवाजें सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अरे इसमें वाव 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 कुछ हल्की सही लेकिन फ्लक्चुएशन सुनाई दे रही है। I am able to hear the beats at one place. Please note, at one place where I am sitting. और उसके बारे में आप बाद में फिर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि भाई अगर फ्रीक्वेंसीज को मैच करने की दिशा में मैं फ्रीक्वेंसी जनरेटर को सेटिंग बदलूं तो उसका प्रभाव मेरे अनुभव पर कैसे पड़ता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको ऑब्जर्वेशन या सुनना भी आपका एक ऑब्जर्वेशन ही है। द टर्म ऑब्जर्व डज नॉट नेसेसरली मीन दैट यू हैव टू सी समथिंग, यू आर सपोज टू ओनली डिटेक्ट समथिंग, रजिस्टर समथिंग बाय वे ऑफ योर माइंड, एंड दैट इज व्हाट एन एक्सपीरियंस इज। समटाइम्स इट इज a cumulative experience which involves more than a single organ, more than a single sense, and this is what you are aiming at. तो एक्सपेरिमेंट में आप देखिएगा
frequencies could be matched by changing the frequency of the generator in the direction of reducing the fluctuation sound levels and ultimately allowing the beats to vanish. बीट्स जब वैनिश हो जाते हैं तो आपको ये तसल्ली होती है, देन यू आर श्योर कि बोथ द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट सोर्सेस दे आर नाउ परफेक्टली मैचिंग इन फ्रीक्वेंसी. व्हेन आई से दिस, let me draw your attention to one very rudimentary fact. Often we hear two distinct words. One is tone, T-O-N-E, और दूसरा N-O-T-E, note. क्या ये दोनों लफ्ज, both the words, are they identical? Please note that these two are distinctly different words. टोन में प्यूरिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी अपेक्षित है. इन टोन यू आर सपोज टू हैव सिंगुलरिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वेयर एज इन अ नोट यू मे हैव हार्मोनिक्स एज वेल. हार्मोनिक्स मतलब उसके मल्टीपल्स. जो हम लोग एक ही फ्रीक्वेंसी बजाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्यूनिंग फोक के सेट के बारे में मैंने आपसे कहा कि 256 अक्सर जो हमेशा दिखता है अपने लेबोरेटरी के सेट में वो 256 है. तो 256 ये मेरा बुनियादी सुर हो गया, सा बन गया. उसका फंडामेंटल कहते हैं उसको, और उसका जो सेकंड हार्मोनिक है वो कहाँ आ जाएगा? दैट इज द डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, नेमली 512. अंत में मैं आप लोगों को एक सुझाव देता हूँ एक एक्टिविटी के जरिए, जो आप बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें. बच्चों को मैग्नेटिज्म में भी काफ़ी दिलचस्पी होती है, रुचि होती है. तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बच्चों तक ये एक्टिविटी ले जाए. और ये ओपन एंडेड एक्टिविटी है, तो जिसमें मैंने आपको 3 फोटोग्राफ शेयर किए हुए हैं. वो आप देखिएगा कि मैग्नेट्स को कैसे रखा जा सकता है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है. और हम लोग इसका थोड़ा सा ये गौर करें तो पता चल जाता है कि जो कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला साइकिल माना जाता है कि जिसके 4 घटक है, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन, कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्सपेरिमेंटेशन. तो उसके बारे में हम लोग ज़रा उनको प्रोत्साहित करें तो अच्छा रहेगा. तो पहली बात तो ये है कि एक रिंग मैग्नेट जो है वो दूसरे के ऊपर क्यों तैर रहा है, तो इसकी हम लोग उनको पहले अनुभव कराएं उसका कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे होता है. तो अट्रैक्टिव मोड और रिपल्सिव मोड वो दोनों हम लोग उनको दिखा सकेंगे. दूसरा फिर उसके ऊपर उनको उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना है कि एक फलाना डिस्टेंस पे ही वो सेटल हो जाता है सिस्टम, उससे नीचे या उसके ऊपर नहीं होता है. तो कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ उनको ढकेलने का ये तरीका हुआ कि मैग्नेटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस कैसे एडजस्ट करते हैं एक दूसरे को, ताकि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन सब मैग्नेट्स का बना रहे. उसकी तरफ हम लोग अगर उनको ज़रा थोड़ा सा प्रेरित करें तो अच्छा रहेगा. और बाद में ये जो हम लोग फोटोग्राफ्स के ज़रिए, तो मैंने 1-2 प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ बताई हैं आपको, कॉन्फ़िगरेशन बताए हैं. लेकिन हो सकता है कि अगर आप बच्चों को उसमें दिलचस्पी आ जाए तो वो और मैग्नेट्स ले आए और उसका एक चेन बना के उलट सुलट जो भी ये करना है, बाकी एक्टिविटीज़ करने हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ट्राई आउट करने हैं. नीचे 2 मैग्नेट अट्रैक्टिव मोड में, एक ऊपर रिपल्सिव मोड में, या नीचे एक मैग्नेट और ऊपर 2 मैग्नेट अट्रैक्टिव मोड में. बहुत कुछ उल्टा सुल्टा ये कर सकते हैं. तो उसका मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करें और सीक अ फीडबैक फ्रॉम देम. दैट इज़ व्हाट आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि इससे आपको ये जो अनुभव आपको मिल रहा है, इससे आप क्या क्या सीख सकते हैं. और सीखने के लिए अगर और कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना है तो उसको कैसे किया जाए. देखिए, वी मस्ट समहाउ पास ऑन दिस वेरी वैलिड मैसेज टू देम कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है, इन जनरल एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्लान्ड एक्सपीरियंस. तो ये एक्सपीरियंस प्लानिंग वाली जो बात है उसकी तरफ उनका ध्यान जो है वो ज़रूर आकर्षित करें.